Hello everyone, thank you for having me. My name is Roshan Anand and I am going to be speaking to you today about letter writing. See, already I have discussed in a video previously about the letter writing, but there is some confusion in that to how to write a correct letter. Okay. So first of all, I just introduce about some that later how it is structured. That we all know that letter writing is an important channel of communication between people who are geographically distant from one another. Okay. In earlier times, when the telephone and email were not available, the only means of communication between people was through letters. So letter writing is a skill that has to be developed. In general, there are two types of letters. We all know that, formal and informal. Formal is that are written to convey official business and information, and informal is what? Which are personal letters to communicate with the friends and family. Formal letters are sent out when we need to write to various public bodies or agencies for our requirements in civic life. Okay, suppose we see an example. We might have to ask for a certificate or to inform a change in our address. A letter is usually one in a series of exchanges between two or more parties. So it all means with that कि with the advent of modern technology, it is true that letter writing is not something that is seen anymore. However, it remains a hobby for a lot of people, and while physical writing, letters on paper has become outdated. We all know that. Emails have taken their place. We all see every day that when someone needs to contact to another, he just have a email contact rather than having a paper letter. So emails are simply letters written over an electronic medium. Why I am just telling about or giving more importance on email, I will just tell about this in an elaborate manner, because email need to be written with the utmost care since they are mostly used for formal communication. Very infrequently can official emails have a hint of informality in them, which is why it is important to know how to write a letter. So basically इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास में हम जब भी देखते हैं कि हमें किसी किसी से जुड़ना है, कुछ हमें संदेश पहुंचाना है, या किसी को किसी का ज्वाइनिंग लेटर भेजना है, तो इसके कई प्रारूप होते हैं लेटर के जो हम देखते हैं। और वो प्रारूप किस तरह के होते हैं? बेसिकली हमारे जो प्रारूप जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि काइंड्स ऑफ जो लेटर होता है वो हमारा चार तरह का होता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। जो कि पहला होता है पर्सनल लेटर, जो व्यक्तिगत होता है, जिसको हम कहते हैं, जो हम अपने मम्मी पापा दोस्त को लिखते हैं, या किसी अपने खासम खास को लिखते हैं, तो वो हमारा पर्सनल लेटर हो गया। और बिजनेस लेटर होता है जो बिजनेस से रिलेटेड एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को, या एक व्यापारी अपने ग्राहक को, या ग्राहक अपने व्यापारी को लिखता है, या ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से इस तरह से करके एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते हैं, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा बिजनेस लेटर होता है। ऑफिशियल लेटर होता है जो ऑफिस से रिलेटेड होता है, जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, उसको कुछ भेजना है आपको, या आपको उसको कुछ भेजना है, तो हमारा ऑफिशियल लेटर के अंतर्गत आएगा। या कोई सरकारी अधिकारी किसी अपने बड़े अधिकारी को, या छोटे बड़े अधिकारी किसी अपने अथॉरिटी, सीनियर अथॉरिटी, राज्यपाल, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, या कोई मुख्यमंत्री का चिट्ठी आ रहा है तो आपको, तो वो आपका एक तरह से ऑफिशियल लेटर हो जाता है।
और सोशल एक चौथा होता है हमारा सोशल लेटर, जो हम किसी जैसे बर्थडे शादी वादी होती है उसमें हम किसी को बुलाना या ग्रीट करना चाहते हैं किसी ओकेज़न पे, या कोई अच्छे से मतलब उसकी एनिवर्सरी है तो उसको हम ग्रीट करना चाहते हैं, तो वो हम हमारा जो है सोशल लेटर में आ जाएगा, जिसको हम इनविटेशनल लेटर भी कहते हैं एक तरह से। ठीक है, अब आते हैं इसके जो चारों जो हमारा जो फॉर्मेट है, प्रारूप है, जो काइंड्स है हमारे लेटर का, उसको हम कितने तरीके में बांट करके, कितने भागों में बांट करके उसको हम लिख सकते हैं, और जो हमारा जेन्युइन है उसे लिखना ही पड़ेगा हमें। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि पहला जो होता है वो हमारा हेडिंग होता है। ठीक है, पहला जो होता है हमारा हेडिंग होता है। उसके मामले में, इस मामले में मैं आपको एक आपको यहाँ पे शो करता हूँ, मैंने बना रखा है पहले से। यस, हेडिंग होता है ना। हेडिंग क्या हुआ, ये मेरा जो ये वाला जो है एड्रेस के साथ जो डेट होता है, ये हमारा हेडिंग होता है। ओ, एक और है हमारे पास, वो मैं शो करता हूँ, इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए, ये मैंने इसमें लिखा है एड्रेस, सेंडर एड्रेस होता है ना लेटर एक लिखने का, तो ये हमारा एड्रेस हो गया जिसमें डेट भी होता है। सेंडर एड्रेस होगा, जैसे मैं अगर लिख रहा हूँ लेटर किसी को तो ये एड्रेस मेरा होगा। ठीक है, उसके बाद सैल्यूटेशन जिसको कहते हैं वो ये हो जाएगा माय डियर, जो भी आपका समथिंग होगा, ये एक तरह से पर्सनल लेटर है, लेकिन फॉर्मल में भी कुछ इसी तरह से होता है, बस यहाँ पे एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है। और ये हमारा जो है बीच का जो है बॉडी होगा। मैंने शुरुआत में कुछ लाइन लिखे हैं, फिर ऐसे ऐसे मतलब आप कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो जाता है क्लोजिंग लाइन। ये मैंने यहाँ पे लिखा है क्लोजिंग लाइन विद बेस्ट विशेस, जो होता है ये हमारा क्लोजिंग लाइन होता है, कंक्लूडिंग लाइन इसको कहते हैं। और सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर। ठीक है, तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन, योर अफेक्शनेटली है ना, योर्स ओबीडियंटली, ऐसे करके जो लिखते हैं वो हमारा सब्सक्रिप्शन हो जाता है। और ये जो हमारा है रोशन आनंद, इसमें ये हमारा सिग्नेचर हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट में, जो हम लोग बहुत कोई छोड़ देते हैं, है ना, ये होता है हमारा एड्रेस। क्योंकि मुझे कहीं भेजना है तो यहाँ पे मैंने नाम भेजने वाले का छोड़ दिया है, आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे। यहाँ पे नाम भी होगा, जैसे मान लीजिए आप विवेक को भेज रहे हैं तो विवेक का नाम यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद एड्रेस और पिन कोड के साथ आप एड्रेस दे सकते हैं। ठीक है, ये हुआ कुल मिला करके एक कह सकते हैं कि जो हमारा लेटर लिखने का जो तरीका होता है ओवरऑल, ये हमारा एक फॉर्मेट है। ठीक है, अब आते हैं मेन बात पे। आप इसमें नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे, आप लोग जनरली लिखते होंगे लेफ़्ट साइड में, है ना। मुझे ये वीडियो बनाने के पीछे एक कारण यही है कि मैंने दोबारा क्यों इसके ऊपर वीडियो बनाया। तो पहला रीज़न यही है मेरा कि जो पिछला जो मैंने लेटर बनाया था, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें, हाँ, इसमें जो मैंने लिख रखा है आप देखेंगे इसमें, है ना, ये इसमें मैंने राइट हैंड साइड लिखा है ना। ओके, बहुत लोगों को लगता होगा कि ये मैंने गलत लिखा है, ये पुराना फॉर्मेट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पुराना फॉर्मेट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, और फिर इधर से ऐसे है, फिर मैंने इसमें जो है यहाँ पे मतलब राइट हैंड साइड में लिख दिया, जबकि लेफ्ट साइड में लिखते हैं, है ना। फिर यहाँ पे ऑफिशियल लेटर में भी बिल्कुल वैसे ही मैंने किया है, एड्रेस और ये आपका जिसे आप लिख रहे हैं अपने एरिया मैनेजर को, ये हो गया आपका, है ना। फिर मतलब सेम चीज़ है, मैंने इसमें राइट हैंड साइड में लिखा है इस चीज़ को। तो यहाँ पे इसी वजह से ये लेटर लग रहा है कि ये मैंने गलत लिखा है। और आपको दूसरा दिखाता हूँ, ये जो एक फॉर्मेट है, ये अमूमन हम लोग देखते हैं कि जनरली कोई भी लेटर लिखा जाता है वो इसी फॉर्मेट पे लिखा जाता है ना। अब बात होती है ये कि दोनों में से सही कौन है, ये सही है या वो सही है। अगर ये सही है तो वो गलत है, ये चीज़ होता है। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि दोनों फॉर्मेट सही है, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, रीज़न क्या है, पीछे चलते हैं थोड़ा सा। जब मैं
जिक्र करता हूँ 2009 की, है ना। तो 2009 में सीबीएसई का फॉर्मेट आया था कि राइट में लेटर को ना लिख करके अब सभी लोग लेटर को लेफ्ट साइड से शुरुआत करेंगे, और लिखने का मतलब जो भी है वो तरीका हमेशा हमेशा लेफ्ट से ही शुरू होगा। राइट में अब कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, जैसे बॉडी हो गया, एड्रेस हो गया, है ना, सब्सक्रिप्शन वगैरह जितना सारा चीज़ है। तो ऐसा क्यों हुआ? सीबीएसई का फॉर्मेट है, सीबीएसई का फॉर्मेट है, मैं 2-3 बार कह रहा हूँ सीबीएसई का फॉर्मेट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई ने अपना पैटर्न तैयार किया था कि मुझे मेरे एग्ज़ाम्स में बच्चों को मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ही लेटर अगर लिखते हुए मिलना चाहिए, वो लिखते हुए होने चाहिए, तभी मार्क्स मिलेंगे। राइट साइड अगर लिखते हैं तो मे भी उनके मार्क्स भी कट सकते हैं, क्योंकि ये मतलब इसका अपना मतलब जो भी ये रूल्स है सीबीएसई का। लेकिन अगर सीबीएसई के बाहर जा कर के अगर हम देखते हैं तो वो हमारा राइट हैंड साइड्स में अगर लिख रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है, कोई गलत नहीं है। अब मैं डिस्कस करता हूँ कि जैसे लेटेक करेक्ट लेटर लिखने का तरीका जो होता है, जैसे यहाँ पे मैंने सेंडर्स एड्रेस लिखा, और याद रखें कि जो सेंडर्स एड्रेस होता है वो 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 लाइन से ज़्यादा होगा तो फिर वो गलत होगा, ठीक है। और इसमें आपको अपना झारखंड या इंडिया वगैरह वगैरह ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस आप अपना टाउन लिखें यहाँ पे, दैट इज़ सफिशिएंट। उसके बाद जब माय डियर विवेक जो लिखे हैं, तो जो नेक्स्ट लाइन जो शुरुआत करेंगे, ऐसा नहीं कि माई के नीचे से शुरुआत करेंगे, आप जहाँ विवेक ख़त्म हो रहा है वहाँ से आप शुरुआत करेंगे नेक्स्ट लाइन में लिखना जो भी आपको लिखना है, ठीक है। ये पर्सनल लेटर है, और आप ऑफिशियल लेटर में भी बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होगा। और सेम चीज़ यहाँ पे क्लोजिंग लाइन जो है वो भी वैसे ही होगा, सेम चीज़ ऐसे ही होगा, ठीक है। और बाकी जैसे इसमें लिखा हुआ बिल्कुल सब वैसे ही रहेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि सारा चीज़ हम लिख पाएंगे। अब बहुत लोग बोलेंगे कि इसका क्या प्रूफ है कि हम इसको इस तरह से हम लिखें, है ना। तो हम देखेंगे इसका एक, मैंने बहुत इसकी पड़ताल किया, मैंने आजकल चलन में आ गया है लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो रूल्स दिखाता हूँ मैं आपको इसका। रेन एंड मार्टिन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हाईली रिकमेंडेड बुक है ये, है ना। तो उसके रूल्स मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है। इन अ लेटर फर्स्ट राइट योर एड्रेस एंड अंडर इट डेट इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज, है ना। तो इसमें हमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर में हम अगर पेज पे लिखते हैं तो उसमें वो गलत नहीं है किसी भी तरह से, ठीक है। अब देखिए द राइट द सैल्यूटेशन, जैसे डियर या जो भी लिख रहे हैं, तो लोअर डाउन एट द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, इसको हम मतलब लेफ्ट डाउन साइड ऑफ द पेज में लिखेंगे, बिगिनिंग विद अ कैपिटल एंड पुटिंग अ कॉमा आफ्टर इट, कॉमा लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लिखेंगे, नेक्स्ट बिगिन योर लेटर विद अ कैपिटल लेटर ऑन द नेक्स्ट लोअर लाइन टू द राइट ऑफ द सैल्यूटेशन, वही मैंने बताया ना कि डियर विवेक, विवेक जहाँ खत्म होता है उसके जस्ट बाद से हम लिखना शुरू करेंगे। एट द एंड ऑफ द लेटर राइट द सब्सक्रिप्शन ऑफ और वर्ड्स ऑफ लिविंग टेकिंग योर सिंसियरली एट द राइट और लेफ्ट, मतलब दोनों तरफ लिख सकते हैं, राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, है ना। मतलब अगर आप राइट भी लिखते हैं तो भी ठीक है, लेफ्ट लिखते हैं तो भी ठीक है, दोनों में से कोई मतलब गलत नहीं है कोई। आप अगर आप एग्जाम में लिख के आते हैं तो टीचर आपके मार्क्स नहीं काटेंगे, और यही इसका पैटर्न है लिखने का। अब हम बात करते हैं कि ये ऐसा हुआ क्यों, कि मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये क्या मतलब है, कैसे भी लिखें। तो देखते हैं कि अब जैसे हमने बताया ना कि ईमेल का चलन हो गया है आज के समय में, आजकल कोई पेपर पे लिखता नहीं है ना। तो पेपर पे नहीं लिखते हैं तो ईमेल पे हम लिखते हैं। तो ईमेल में क्या होता है कि हर चीज़ को राइट साइड से शुरुआत करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि हमारा जो कर्सर जो होता है, कर्सर बार जो होता है वो हमेशा लेफ़्ट साइड से शुरुआत करता है। तो एक लेटर लिखने में ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आसानी से हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड से ही शुरुआत कर सकते हैं, एक के नीचे एक टैब एंटर दबा करके,
है ना। तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा और एक देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये तरीका ईमेल वाला है जो लेफ्ट हैंड साइड से हम लिखना शुरू कर चुके हैं ऑन द पेपर ऑल्सो। अगर आप मेल पे लिख रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेल में तो आपको लेफ्ट हैंड साइड से लिखना ही लिखना है। लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड अगर मेल में लिख रहे हैं ये, तो वो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, नहीं नहीं दिखता है सही, मतलब देखने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर पेपर पे लिख रहे हैं तो आप राइट हैंड साइड लिखें या लेफ्ट हैंड साइड लिखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के यही हुआ कि दोनों फॉर्मेट सही है। कोई अगर आपसे कहे कि नहीं लेफ्ट हैंड साइड वाला सही है वो गलत है, तो तर्क वाली बात ही नहीं है, दोनों क्लियर एंड कट है। मैंने आपको मतलब जो एक प्रमाण के तौर पे रेन एंड मार्टिन की जो उसके रूल्स दिखाए मैंने, जो लेटेस्ट उसके अपडेट हैं बुक्स के, ऐसा भी नहीं कि पुराना अपडेट है। मैंने बताया ना, मैंने जब मैं 9वीं कक्षा में था 2009 में, तब हमारे क्लास टीचर जो इंग्लिश के थे उन्होंने साफ तौर पे जोर दे करके कहा था कि अब से जो लेटर हमें लिखना होगा वो लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे। ये सीबीएसई का ऑर्डर आया है, ये सीबीएसई का फॉर्मेट आया है, हमें एग्जाम में इसी पैटर्न पे लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड से हमें सब चीज़ शुरुआत करनी होगी। इवन आपको पता है कि माय डियर विवेक के नीचे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखते हैं हम लोग, तो वो आई भी जो है ना, जैसे आई हैवेंट जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, तो ये भी माई के नीचे से शुरुआत होगी। तो ये सीबीएसई का पैटर्न था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो पर्सनल लेटर मेरे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ये भी एकदम बिल्कुल करेक्ट है, जो आजकल ये सब चलन में है। और दूसरा पैटर्न ये हो गया आपका ये वाला, ये भी दोनों सही है, मतलब पर्सनल और ये आपका ऑफिशियल लेटर में। अभी हम इसी दोनों पे बात कर रहे हैं, बिजनेस लेटर और ये जो आपका इनविटेशनल लेटर होगा वो, उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो कुल मिलाकर के ये ओवरऑल आज हमारा वीडियो था, जो बहुत लोगों को डाउट था इस चीज़ के ऊपर, तो वो चीज़ मैंने क्लियर किया है। इनफैक्ट मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू ऑल, गुड लक।